ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਘਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਲਿਖਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਫਨ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਫਨ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਮੱਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਨੇ, 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਮੱਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 2 ਪੁੱਤ ਬਚੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਆ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਟਟੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੈ ਟਟੀਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੋਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਟ ਭੱਜ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਟਟੀਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਲੋਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਬੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਫਤਾ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬਰੀਕੇਸ ਦਬਦਾ ਫੜਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਦੇ। ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਣੀ ਹੈ 2-4 ਮਿੰਟ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਵਚਨ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਫਤਾ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, 3.5 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲ ਖੁਰੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐ ਲੰਘ ਚੱਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਐ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ? हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਕਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ? ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ? ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਦਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਅਜ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਦਾਦਿਆ ਇਹ ਕੈਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਟੱਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਫਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਫਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੜੀਏ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਮੇਰੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਈ, ਲੱਗੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੱਟ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਸੋਲ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੱਟ ਮੇਰੇ। ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ। और तइयों वो मुसलमान विद्वान लिखदा है, कहंदा हाशा किसी मुर्शिद में ऐसा असयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़िनहार नहीं है, जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिखा नूं कीता है, इन्ना प्यार दुनिया दा कोई पीर अपने मुरीद नूं कर नहीं सकिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने सिखा नूं इन्ना प्यार कीता है। साध संगत सुनिओ हुण, कलगीधर पातशाह ने एक बहुत प्यारा सिख होया है जिन्हों भाई बचित्र सिंह कहंदे ने। आनंदपुर साहब की धरती ते जदों पहाड़ियां दे हाथी नाल लड़न वाला जिन्हों गुरु ने कहा साडे कोल भी हाथी है दुनी चंद वर्गे, आपे पहाड़ियां दे हाथी नाल कल मुकाबला करांगे। अद्धी रात नूं दुनी चंद भज गया, किले दी कंध टप गया। साध संगत वो किले दी कंध टप्पण लगे लत गया, घर बैठे ओनू कमरे में सप लड़ गया, मूसा भज्या मौत तो अगे मौत खली, गुरु तो बेमुख होके मर गया। बाद विच इतिहास आउंदा है ओदे पोतियां ने अपने दादे दी बेमुखी दा दाग धोया, जिहड़ा गुरु नाल धोखा कीता। ओदे पोते दोवें भाई अरूप सिंह भाई सरूप सिंह मुक्तसर साहब दी जंग च शहीद होए। खैर जदों सवेरे खबर मिली महाराज तुहाडा हाथी तां भज गया, जिन्हों दुनी चंद नूं हाथी कहंदे सी। कलगीधर पातशाह ने कहा फिर की हो गया?
हाथी ना हाथी लड़ाउणा सी वो भज गया, हुण हाथी दा मुकाबला साडा चीता करेगा। कहंदे महाराज चीता केड़ा है? 4.5 पौने 5 फुट दा कद है भाई बचित्र सिंह। कोई बहुत उच्ची बड़ी हाइट नहीं है शरीर दी, बिल्कुल मधरा जिहा शरीर है। 4.5 पौने 5 फुट दा करीब कद है, पर फुर्तीला बड़ा है। बादशाह ने कहा चीता लड़ेगा साडा। महाराज कौन? कहंदे भाई बचित्र सिंह। कलगीधर पातशाह ने नागणी बख्शिश की। अज वो नागणी तखत श्री केसगढ़ साहब तुसी दर्शन करदे हो, ओदे नाल उस हाथी नूं मारिया। जदों पातशाह नाल किला आनंदगढ़ छड्डिया ते साध संगत सरसा नदी पार कीती। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सरसा नदी दे कंढे भी नितनेम पूरा कीता है। पार करके सिखां पुछया महाराज जे उत्थे ना बहिंदे 2 घड़ियां दुश्मन सिर ते नहीं सी आउणा, अपना बहुत कुछ बच जाना सी। कलगीधर पातशाह ने कहा दया सिंह बहुत कुछ बच जाना सी, बहुत कुछ रुड़ जाना सी। महाराज की सच्चे पातशाह ने कहा उस वक्त जपजी का जाप करना जरूर था, गुरु ग्रंथ की वाणी से भरना सरूर था। उस वक्त जपजी साहब करना नितनेम जरूरी सी। क्यों? जे मैं दुख वेले नितनेम छड़ दिंदा सिखां ने सुख विच भी नहीं सी करना। माफ करियो अज घर च ब्याह होवे 2-3 दिन इदां ही लंघ जांदे जी, नितनेम ही नहीं होया, घर च ब्याह सीगा। गुरु ने दुख वेले भी नितनेम नहीं छड्डिया। उस वक्त जपजी का जाप करना जरूर था, गुरु ग्रंथ की वाणी से भरना सरूर था। सरसा पार की गिनती दे सिख वजे, पर हैरानी दी हद ना रही। अजे ठंडे पानी नाल शरीर ठोर ठोर करदा है, क्योंकि जदों नदी चों लंघो कपड़े गिले होण फिर इन्हां दिनां विच हवा वगदी ठंड होर लगदी है। शरीर कंब रहे सन, पर बड़ी वड्डी हैरानगी हुई। रोपड़ दे रंगड़ा ने हल्ला बोल दिता। सरसा पार करके बड़े कमसान दी जंग मची। इत्थे गुरु के सिखां ने पूरे जोश नाल जाना हूल के जंग कीती, और साध संगत 3.5-4 घड़ियां दे विच पौने घंटे दे अंदर अंदर रोपड़ दे रंगड़ा दे सत्थर बिछा दिते। पर इस जंग विच गुरु दा अनमोल हीरा वो प्यारा सिख भाई बचित्र सिंह इन्ने को फट लग गए कि शरीर बल ना चले, मुर्शद हो गया, लहू बहुत वग चुका सी। ते सिखां ने कहा पातशाह भाई बचित्र सिंह तो उठिया नहीं जाता। हजूर ने कहा इहनूं चुक के मेरे घोड़े ते बिठाओ। भाई बचित्र सिंह नूं 2-3 सिखां ने चुक के पातशाह दे घोड़े ते बिठाया। हजूर ने एक लंबे साफे नाल उहनूं अपने पेट नाल बन लिया। पातशाह उस नदी तो बाहर लंघ गए। अज जिथे गुरुद्वारा भट्ठा साहब है उस जगह ते लग गया। सारे सिखां नूं कहा अग सेको, कपड़े सुकाओ। भाई बचित्र सिंह दे शरीर चों बहुत खून बह चुका सी, शरीर मुर्शद हो रहा है। फट इन्ने लगे सन, इलाज करना संभव नहीं सी। हजूर सच्चे पातशाह उस साफे नूं पट्ठे दे कोल गर्म करके भाई बचित्र सिंह नूं सेक दिंदे रहे। इन्ने नूं पट्ठे दा मालक चौधरी निहंग खान चौधरी पहुंचदा है। उन्हें पातशाह नूं अदब सत्कार सहित नमस्कार कीती। महाराज मैं कदों दियां फरियादां करदा सी, जदों महाराजा भट्ठा मैं शुरू कीता ना मेरे मन की इच्छा सी इस भट्ठे नूं अग गुरु गोबिंद सिंह महाराज देण। इस भट्ठे की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह महाराज करन, पर पातशाह जंगा जुद्धां करके तुसी आए नहीं। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज तुसी चरण पाए ने। कलगीधर पातशाह ने कहा चौधरी निहंग खां हुण तेरा पट्ठा भी दुनिया विच अमर हो जाएगा। दुनिया च पट्ठे बहुत ने, उन्हां पट्ठियां तो बनिया इट्टां दे महल भी गर्क जांदे ने, वक्त पाके किले भी ढेरी हो जांदे ने, पर जा चौधरी निहंग खां तेरा पट्ठा अमर रहेगा। याद रखियो दुनिया विच इक्को एक पट्ठा है जिन्हों पट्ठा साहब करके आपां मत्था टेकीदा। पता क्यों? उत्थे मेरे साहब दे चरण पए ने। चौधरी निहंग खान ने हाथ जोड़ के महाराज इत्थे ना बैठो, मेरे घर चलो, मैं भोजन प्रशादे की सेवा करांगा। महाराज घर में चरण पाओ।
10वें पातशाह ने बचन कहे, चौधरी निहंखा असी तेनू खतरे विच नहीं पाउणा चाहुंदे, जा तेरी सेवा प्रवान है, पर साडा एक सिख है भाई बचित्र सिंह, इहदे शरीर विच अगे जाण दा बल नहीं है, शरीर कमजोर पै के लहू निकल के बेहोशी वल जा रहा है, जिन्नी देर साह चलदे ने इहदी लाश इहदा शरीर तेरे घर रहेगा, इहदी सेवा करी जाई। भाई बचित्र सिंह दी सेवा गुरु गोबिंद सिंह दी सेवा होएगी। पातशाह ने सिखां नूं कल्लिया, बहुत घायल हालत विच, जख्मी हालत विच भाई बचित्र सिंह जी नूं चौधरी निहंखा दी हवेली छड्ड दित्ता। कलगीधर पातशाह रोपड़ तो अगे चमकौर साहब वल चल पए। चौधरी निहंखा दी सेवा लाई, भाई बचित्र सिंह दी सेवा करी। वो जिन्ना हो सकिया मल्लम पट्टी करदा रहा, सेक दिंदा रहा, पर शरीर कमजोर पै रहा सी। साध संगत रात लंघी, अगली सवेर रोपड़ विच रौला पै गया। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज रोपड़ विच आए हुए ने, चौधरी निहंखा दे भट्ठे तो शायद चौधरी दे घर चले गए ने। दिन चढ़िया, चौधरी निहंखा दी हवेली नूं घेरा पै गया। दरोगा ने आके दरवाजा खड़काया। चौधरी निहंखा ने दरवाजा खोलिया। दरोगा चौधरी निहंखा मुसलमान दी बड़ी इज्जत करदा सी। उन्हें चौधरी निहंखा नूं कहा, चौधरी साहब मैनू तुहाडी हवेली दी तलाशी लैण दा सरकार वालों हदायत आई है, मैं तुहाडे हवेली दी तलाशी लैनी है, मैनू पक्की पुख्ता खबर मिली है गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे घर विच लुके होए ने। चौधरी निहंखा ने बड़े मान नाल कहा, तेनू खबर गलत मिली है दारोगा, तेनू खबर गलत मिली है। पहली गल गुरु गोबिंद सिंह लुकण वाले नहीं, ते दूजी गल गुरु गोबिंद सिंह मेरे घर नहीं आए। पहली गल गुरु गोबिंद सिंह लुकण वाले नहीं, तेनू खबर गलत मिली है, ते दूजी गल गुरु गोबिंद सिंह मेरे घर नहीं आए। वो दारोगा बोलिया, कहना जी मैनू हदायत है तुहाडे घर दी तलाशी लैण। चौधरी निहंखा अंदरों डर गया। तलाशी होएगी, भाई बचित्र सिंह जिउंदे ने, जख्मी हालत विच पकड़े जाणगे, रहिंदी दुनिया तक मेरे मत्थे ते कलंक रहना है। ले चौधरी मुसलमान होके चौधरी निहंखा ने गुरु नाल धोखा कर लिया। गुरु दा सिख चौधरी निहंखा ने अपने घरों पकड़ा दिता है। चौधरी अंदरों डरिया, पर एकदम रब ने सोझी दिती। वो चौधरी निहंखा बोलिया, कहंदा दरोगा साहब 2 मिनट रुक जाओ, मैं घर दियां औरतां नूं पासे करां, क्योंकि इस्लाम विच इस गल दी पाबंदी है, कोई भी इस्लाम दी औरत पराए मर्द दे सामने बिना बुरके तो बिना पर्दे तो नहीं जाती। मैं घर दियां औरतां नूं सदा दे आवां, पासे कर आवां, 2 मिनट रुक जाओ। दारोगा रुक गया। एकदम आके चौधरी निहंखा ने अपने घर वाली ते नौजवान बच्ची बेटी मुमताज नसीर नूं एक गल कही, बेटा मुमताज नसीर, अज तेरे अब्बा जान दी शान खतरे विच है। पुत धीआं प्यो दे पग दा मान हुंदियां ने, धीआं प्यो दे पग दी शान हुंदियां ने, अज तेरे प्यो दी इज्जत शान खतरे विच है। उनके अब्बा जान की होया? कहणगे हवेली नूं घेरा पै गया है, बाहर दरोगा खड़े, हवेली दी तलाशी होएगी, भाई बचित्र सिंह पकड़े जाणगे। जख्मी हालत विच पकड़े गए तां सारी उम्र लई कलंक रहना चौधरी निहंखा ने गुरु गोबिंद सिंह दा सिख पकड़ा दिता। तां ओ फिर बेटी मुमताज नसीर बोली, कहनी अब्बा जान दसो की हुक्म है? चौधरी निहंखा ने कहा, धीए मेरा एक काम कर सकती है, शायद अज तेरे अब्बा दी इज्जत बच जाए, मेरा एक काम कर दे। ओ बेटी ने कहा, अब्बा जान दसो गल की? कहणगे बेटा जेड़े कमरे विच भाई बचित्र सिंह मुर्शद पए ने, जा मेरी धीए उस कमरे विच जाके बह जा, अंदरों दरवाजा बंद रखी, जदों पूरी हवेली दी तलाशी होएगी ते जे दारोगा ने आवाज देके पूछया इत्थे कौन है, मैं इन्ना कुछ झूठ बोलांगा, इस कमरे विच मेरे दामाद ते मेरी बेटी है, अंदरों तू जे पूछया ते कह दे मैं ते मेरे शौहर ने। एकदम भज के बेटी मुमताज शरीन जड़ी सी नसीर चली गई उस कमरे च, दरवाजा बंद। उस वक्त पूरी हवेली दी तलाशी शुरू हो गई।
इतिहास कहता सारी हवेली की तलाशी होई, चौधरी निहंग खान दे घरों कोई सिख जां गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कोई निशानी ना मिली। एक कमरा बंद सी। दारोगा पुछदा चौधरी साहब इस कमरे विच कौन है? उन्हें कहा जी मेरी बेटी ते दामाद आए हुए ने, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता उन्हां दा कमरा इस तरह दरवाजा खड़कावां। ते चौधरी कहना तसल्ली वास्ते मैं पूछना चाहना है। उन्हें दरवाजा खड़का के अंदरों पूछया भाई कौन है अंदर? तो चौधरी निहंग खान दी धी मुमताज नसीर ने यह गल कही, कहती मैं ते मेरे शौहर हन। बस इन्नी गल सुनने दी देर सी, ओ दारोगा हवेली चों बाहर चला गया। क्यों चला गया ये गल हुण सुणो। मुसलमानां विच ईमान इस गल दा मन्निया जांदा है, जदों किसी लड़की का निकाह हुंदा है, तुसीं वेख्या भी होना है, उत्थे साध संगत 3 बार पर्दे विच बिठा के बस 3 बार वो मौलवी इमाम काजी पुछदा है निकाह कबूल है? जे वो लड़की 3 बार कह दे निकाह कबूल है, कबूल है, निकाह कबूल है, उन्होंने उस वक्त हस्ताक्षर करके विआह मन्निया जाता है। ईमान विच पक्के ने, जुबान तो 3 बार कह दे निकाह कबूल है ते निकाह पक्का मन्निया जाता है। मैनू माफ करियो सिखो, गुरु ग्रंथ साहिब दा डर होना चाहिए। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दीयां लावां लैके भी लोग मुकर जाते हैं। असीं किन्ने स्वार्थी हो गए, साडे अंदर इन्नी दृढ़ता विश्वास भै नहीं कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया विआह होया, गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च निकाह विआह शादी होई है। तुहानू पाबंद रहना चाहिए, डर रखना चाहिए। जेड़ा सिख भै भावनी नाल रहिंदा है, गुरु सचमुच उहदे अंग संग रहिंदे। जदों चौधरी निहंग खान दी हवेली चों ओ दारोगा चला गया ना, दरवाजा खुलिया ते चौधरी निहंग खान बहुत खुश होया, चलो मेरी लाज बच गई। कल नूं लोकी ये ते नहीं कहणगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिख नूं पकड़ा दिता सी चौधरी ने। मैनू गुरु गोबिंद सिंह महाराज सेवा दे के गए ने, मेरी सेवा निभ जाए। उन्हें कलगीधर पातशाह दा शुकराना कीता है। शामां तक भाई बचित्र सिंह दी मल्लम पट्टी करदे रहे। जख्मां दी ताब ना चलदियां भाई बचित्र सिंह शाम नूं सूरज ढलिया शहादत दा जान पी गए। इधर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर पहुंचते ने, उधर भाई बचित्र सिंह शहीद हो गए। श्वास पूरे हो गए, हुण संस्कार नहीं सी कीता जा सकता, क्योंकि मुसलमान होकर संस्कार करे तो रौला पैने पैना। उन्हें अपने घर हवेली दे अंदर कबर पट्टी, भाई बचित्र सिंह दा शरीर दफना दिता, चादर कपड़ा पा के शरीर दफनाया। ते जदों उन्होंने शरीर दफना के उपर कपड़ा पा के मिट्टी पाई कबर बनाई, उत्थे फिर चौधरी निहंग खान दी बेटी मुमताज नसीर ने एक गल कही, अब्बा जान जो तुसीं कहा सी मैं उस वेरे कर दिता है, पर जो हुण मैं कहां वो तुहानू करना पैना। चौधरी निहंग खान बोलिया बेटा दस की कहना है? पुत्र जो तू कवे धीए मैं वो करांगा, तू अपने प्यो दी लाज रखी है, हुण दस पुत तू की कहना है? बेटी मुमताज ने एक गल कही, अब्बा जान जो तुसी कहा मैं वो कर दिता है, जो हुण मैं कहां वो तुहानू मनना पैना है। मैं तुहाडे कहण ते अपनी जुबान तो कह दिता मैं ते मेरे शौहर हन। अज तो बाद अब्बा जान मैनू निकाह कराउण वास्ते ना कहो, मैं भाई बचित्र सिंह शहीद दी पत्नी अखवावांगी। ओदे प्यो दी धा निकल गई, धीए इन्नी उम्र किवें कड्डेगी? उन्हें कहा मैनू निकाह कराउण लई ना कहो, मैं भाई बचित्र सिंह शहीद दी पत्नी अखवावांगी। मैं जुबान तो कहा मैं ते मेरे शौहर हन, हुण मैं इस जुबान तो मुकर नहीं सकती। इस जुबान नाल अल्लाह ताला दीयां कलामां पढ़ियां ने, इस जुबान नाल नवाज पढ़ी है। मैं जे एक बार कह दिता मेरे शौहर ने, अब्बा जान हुण मेरा निकाह ना किते करी। प्यो बेबस हो गया। ये खबर साध संगत 10वें पातशाह नूं ना दीने कांगड़ मिली, और धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उथों एक हुक्मनामा लिख के चौधरी निहंग खान दी बेटी दे नाम घल्लिया। नाल पातशाह ने अपना एक खंजर दिता, और पातशाह ने हुक्मनामे विच लिखिया सी बेटी मुमताज
चौधरी निहंग खान तुसी मेरे सिख नूं मेरा रूप समझ के सेवा कीती है। ते थल्ले लिखिया सी बेटी मुमताज अकाल पुरख ने मैनू 4 पुत्र बख्शे सन, मेरी तीबर इच्छा रही अकाल पुरख मैनू एक धी भी बख्शे, पर अकाल पुरख ने सिर्फ 4 पुत्र बख्शे। अज मैनू खुशी है मैनू 4 पुत्रां दे नाल नाल एक धी मुमताज भी मिल गई है। इन्ना मान गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा। बादशाह ने कहा बेटा जदों भी दीदार करने होण अमृत वेले उठ के खंजर दे दीदार करी, गुरु गोबिंद सिंह तेरे अंग संग तेनू दर्शन देणगे। वो उन्हां दे परिवार कोल खंजर रहा, हुक्मनामा भी कोल रहा। 1947 में जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान दी वंड होई, रोपड़ दे इलाके विच जिहड़े मुसलमान रंगड़ा ने हाथ खड़े करके कहा असीं चौधरी निहंग खान दी अंश-वंश, पंजाबी सिखां ने जान ते खेड के उन्होंने अमृतसर कैंप तक पहुंचाया। किसी बंदे की इज्जत आबरू जानी माली नुकसान नहीं होने दिता। क्यों? गुरु ने लिख के दिता सी मेरा खालसा सदा इनका ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्हें सेवा की है। सारी उम्र उस लड़की ने बेटी मुमताज ने शहीद बचित्र सिंह की पत्नी अखवा के उम्र गुजारी है। साथ संगत इन्नी वड्डी दृढ़ता भाई गुरदास साहब जी एक कवित लिखते ने, दुनिया च लखां बंदे लखां औरतां जन्म लैंदियां ने, उम्र भोग के मर जाते ने लोग, पर जेड़े लोग दुनिया तरकारता वाले कर्म करके मरते ने उन्होंने लोग त्रिग त्रिग कहंदे ने। जेड़ियां माइयां जत ते सत विच उम्र गुजार के धर्म नाल मरदियां ने उन्होंने लोग जय जयकार कहंदे ने। भाई गुरदास जी लिखदे अंत काल निग्रह के चोर मरे, त्रिग त्रिग कहत है सगल संसार जी, अंत काल निग्रह के सती होए, जय जय करत है सगल संसार जी। कोई धर्म ते जत सत ते पक्का रह के जावे, रहिंदी दुनिया तक लोग उन्हां बीबियां नूं जय जयकार करदे ने। इत्ते चलो 300 साल तो वध समय दी गल हो गई ना। तुहानूं मैं 30-35 साल दी गल सुणावां। इस तरह दीयां घटनावां इतिहास तो सिख के अगे वरतदियां रहिंदियां ने। इतिहास अपने आप अगे इतिहास नूं जन्म दिंदा है, पर शर्त है इतिहास सच्चा होवे तो वह इतिहास अगे अपने आप वधदा है, उस इतिहास नूं इतिहास होर अगे जन्म दिंदा है। 1984 में श्री अकाल तख्त साहब ते अटैक होया, तुहाडे जो बहुतियां ने हालात वेखे। उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब उस बेअदबी दा बदला गुरु दे सिखां ने लिया। उस वक्त दी हुकूमत दा जिहड़ा प्रधानमंत्री सी जिहड़ी माई ओनू मार दिता। साथ संगत उस तो बाद फिर 2 सिख जेल विच रहे और उन्हां दोवां नूं फांसी दी सजा सुनाई गई, भाई सतवंत सिंह जी, भाई बेअंत सिंह जी। जिहड़ा भाई सतवंत सिंह अगवान है ना, वो भर जवानी विच है, अजे ओदा रिश्ता मंगना अंगेजमेंट बीबी सुरिंदर कौर जी दे नाल होई सी। मन दे अंदर रोज आ गया, श्री दरबार साहब दा अकाल तख्त साहब दा बदला लिया। हुकूमत ने उन्होंने फांसी दी सजा सुना दी और उन्हें जेल विचों सुनेहा कलिया कि जिस लड़की नाल मेरा रिश्ता मंगना अंगेजमेंट हुई है, अपने परिवार दे हथ सुनेहा कलिया, जाके कह दे उस लड़की सुरिंदर कौर नूं मैं तेनू अपने रिश्ते तो आजाद कर दे, तू जिथे मर्जी होर किते रिश्ता ब्याह शादी आनंद कारज करवा ले, अपना जीवन बसर करी, मैं तेनू अपने रिश्ते तो आजाद कर दे। उन्हें उहदे सहुरिਆਂ नूं सुनेहा दिता, भाई साडे लड़के नूं तां फांसी दी सजा हो गई, अज हो जाए कल हो जाए, तुसीं उम्र भर लड़की नूं किथे बिठा के रखोगे, किते होर विआह दिओ। जदों घर वालियां ने गल तोरी भी सुरिंदर कौर दा रिश्ता किते होर कर दिंदे, उहनूं कहा भाई तेरे घर वाले ने तां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नूं मार दिता है, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ,
हुकूमत ने भी आग्या देती वे शायद किते मोह दियां तंदां कमजोर कर देण बंदियां ने। बड़ी दृढ़ता नाल शहीद सतवंत सिंह जी फांसी लटकण तो पहला, शहीद होने तो पहला अपने घर वाली जिहदे नाल सिर्फ रिश्ता ही होया, शादी नहीं होई, रिश्ता ही होया सी, मंगना होया सी। अपने घर वाली नूं कहंदे ने सुरिंदर कौरे मैं तैनूं अपने रिश्ते तो आजाद कर दिता है, तू किते होर अपनी शादी आनंद कारज करवा लई। उन्हें अखां भर के कहा सी सरदार जी मैनू इस रिश्ते तो आजाद ना करो, तुसी शहीद हो जाओ, लख बार कौम तो शहीद हो जाओ, मैं तुहाडे एक शहीद दी पत्नी अखवावांगी, मैं शहीद सतवंत सिंह दी पत्नी अखवावांगी, मैं किते होर आनंद कारज नहीं करवाने। साध संगत कितनी दृढ़ता होएगी और तुसी हैरान होवोगे, ये अजे 30-35 साल दीयां गल्लां ने। फोटो दे नाल लामा हुईयां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ताबिया, ओ बीबी ने फोटो मोरे मोरे सतवंत सिंह जी दी चक्की सी, ताबिया बैठे ग्रंथी साहब लामा पढ़ रहे सी, ओ बीबी एक एक लाम नाल फोटो चुक के परकरमा करके उन्हें लामा लिया, आनंद कारज फोटो नाल होए और एक शहीद दी पत्नी अखवाई। उस तो बाद बड़ी दृढ़ता धर्म विच उन्हें कई साल उम्र गुजारी, शहीद सतवंत सिंह दी पत्नी अखवाउंदी रही। अज जदों शहीद सतवंत सिंह जी दी बरसी मनाई जाती ना, ते साध संगत जदों शहीद दा दिन मनाया जांदा उहदे घर वाली दा भी नाल ही दिन मनाया जांदा। दुनिया में इस तरह दे भी लोग ने जिन्हां दे अंदर गुरु इन्नी दृढ़ता बख्शदा है, इत्थे गुरु कृपा करे पता नहीं क्यों लोग लालच बस हो के गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया लामा लेके फिर मुकर जांदे ने, विआह करा के फिर मुकर जांदे ने। हुण ते लालच इन्ना वध गया, झूठियां लामा सब कुछ करके बाहर जाना चाहिए, बच्चा आईलैट कर लो, चलो बाहर झूठियां लामा कर रहे। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा बख्शिश करन। मैनू एक बंदा कहना जी मोदी ने नवा ही स्यापा पाता, मैं कहा भी शायद अंदोलन की गल करन लगा बई इन्हें कानूना का कोई रौला पिया। मैं कहा भी कानून तो उन्हें वापस ले लेने, हुण किहड़ा स्यापा पाता? कहना जी नवा ही स्यापा पाता, हुण उन्हें कहता वे जदों तक लड़की 21 साल की नहीं हुंदी तुसीं शादी नहीं कर सकते। मैं कहा तुहानूं काहदी काहली है? बच्ची नूं 21 साल की उम्र हो लैण दिओ, तुहानूं किहड़ी छेती है? वो कहा जी आईलैट करके बाहर भेजनी है। ते मैं उहनूं कहा आईलैट करके बाहर तां 21 साल तो थल्ले भी जा सकदी कुड़ी, 21 साल तो उम्र घट है, तां विदेश में तां जा सकदी है। वो कहते नहीं भाई साहब जी अजकल होर तरह चलदा है, पैसे लड़के वालियां तो लवाई दे ने फिर बाहर घल्ली दे, इत्थों तक लोकां दा लालच है। अपने अंदर धर्म ईमान रखो। जिन्हां शहीदां दीयां बातां आपां कर रहे हैं उन्हां दे जीवन तो कोई सिੱਖੀਏ। शहीद भाई बचित्र सिंह दी पत्नी अखवाई ओ बेटी मुमताज नसीर अज साध संगत दे नाम उत्ते गुरुद्वारा बन रहा है, ओदा नाम ही ओ किला मुमताजगढ़ रखे है। पूरा इतिहास तुसी जाके उत्थे वेख सकदे हो। वक्त आएगा शहीद भाई बचित्र सिंह दीयां यादां भी मनाईयां जाणगियां और चौधरी निहंग खान दी धी बेटी मुमताज दी याद भी बनाई जाएगी। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर पहुंचे और धन साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे छोटे लाल साहबजादा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी जी दे नाल सरसा नदी दे कंढे जांदियां जांदियां कुम्मे माशकी दे कोल ओ रात कट्टी। शिखर दोपहर होई ते कितें घुमदियां घुमाउंदियां गंगू मिल पिया। लोभी गंगू अपने घर ले गया। शायद उस वक्त ओदे मन विच लोभ ना होवे, पर साध संगत जिहदे अंदर ओ औगण होवे ओ कदे भी प्रगट हो सकता है। इसलिए अरदास करनी चाहिए है काम क्रोध लोभ अहंकार तो गुरु बचा के रखे। ताइयों सिख जदों भी भोजन छकदा है वो 3 वक्त छके। अरदास करके जरूर कहंदा है श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। क्यों पता नहीं हुंदा अंदर दा औगण कदों प्रगट हो जाए, कदों मन लोभी हो जाए। मन दा की है? डोले ना डोले लखां ते ना डोले, डोलण ते आउंदा कखां ते डोल जांदा है। ना डोले करोड़ां ते ना डोले,
जिदन लोभी हुंदा उदन कौडियां ते भी लोभी हो जाता। इहदा कोई पता नहीं मनदा। वो गंगू लोभी हो गया, चंद मोहरां दा लोभी होके साहिबजादियां नूं पकड़ा दिता। मुरिंडे तो जानी खां मानी खां पकड़ आए। दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखते ने दोवां साहिबजादियां दे नन्हे नन्हे हथ रस्सी नाल बन लए, मां गुजरी दियां बाहां भी पिछां बन दित्तियां। सहेड़ी तो जिन्हों खेड़ी कहते ने उत्थों तोड़ के मुरिंडे तक लेके आए। एक रात मुरिंडे दी कोतवाली विच भुखे प्यासे रखे। इधर चमकौर दी जंग वजीर खां हार चुका सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा बहाल बिंगा नहीं कर सकिया ते सरहंद खबर दिती अगली दोपहर नूं जी गुरु गोबिंद सिंह दे दो पुत्र ते माता जी पकड़े गए। वजीर खां बड़ा खुश होया, कहते ने उन्हें सुनेहा दिता छेती नाल सरहंद लेके आओ। जानी खां मानी खां दोवां साहिबजादियां और धन माता गुजरी जी गड्डे ते बिठा के सख्त पहरे विच मुरिंडे तो सरहंद वाल लेके तुर पे। एक विद्वान ने लिखिया है, दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखदा है, वो कहंदा साहिबजादियां नूं बोरी में बांध कर सरहंद को ले तुरे। बोरियां विच पाया ते बाहरों मुंह बंद दिते तां जो आले दुआले किसे नूं खबर ना मिले वे साहिबजादियां नूं लेके जा रहे ने। ये डर सी किते गुरु गोबिंद सिंह दे सिख हमला करके साहिबजादियां नूं छड़ा ना लैण। बोरियां विच बन के साहिबजादियां ते धन माता गुजरी जी नूं सरहंद ले गए। जदों सरहंद दे नजदीक पहुंचे शामां पै चुकियां सन, सूरज ढल रहा सी, सर्दियां दे दिन सन, छेती नाल धुंद डिगण लग पई ते सरहंद दे कोल जाके दोवां सिपाहियां जानी खां मानी खां ने बोरियां खोल दित्तियां, साहिबजादियां नूं बाहर कढिया। जदों साहिबजादियां ने उच्चे उच्चे किले अटारियां वेखियां, उच्चे उच्चे महल अटारियां ते किले वेख के दोवें साहिबजादे खुश हो गए। दादी मां गुजरी नूं पुछदे ने, कहंदे दादी मां ओ वेखो किले नजर आ रहे ने, लगदा अपना आनंदपुर साहिब आ गया। पौने 7 साल दी उम्र है, तुसीं भी बच्चियां वाले हो, पौने 7 साल दा बच्चा किड्डा हुंदा है। बाबा फतेह सिंह कहंदे दादी मां ओ वेखो किला दिस रहा है, लगदा अपना आनंदपुर साहिब आ गया। मां गुजरी ने घुट के कलेजे नाल ला लै, ना वे लाल ये आनंदपुर साहिब नहीं, ये जालमां दा सरहिंद है। पता नहीं तुहाडे नाल पुੱਤ इत्थे की कुछ होना है। ये आनंदपुर साहिब ना कहो, ये जालमां दा सरहिंद है। दोवां साहिबजादे मां गुजरी नूं लै गए। वजीर खान तो पुछण गए सिपाही जी की करिए। उन्हें कहा रात पै चुकी है, ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ, सख्त पहरा ला दिओ, कल सवेरे मेरी कचहरी विच पेश करिओ। दोवां साहिबजादियां नूं एक रात पहली रात ठंडे बुरज विच कैद कीता, सख्त पहरा ला दिता। मां गुजरी कोल है, सारी रात ठंड विच साहिबजादे ठुर ठुर करते रहे। मां गुजरी शहीदां दी गाथा सुणाउंदी रही, धन गुरु अर्जन दे महाराज दी शहादत सुनाई, तत्ती तवी ते बैठियां शहीदी सुनाई। ठंड दे दिन भी ठंड ना लगी, साहिबजादियां नूं नींद पै गई। गोदी च मूंह ढक के मां गुजरी ने दोवें साहिबजादे सुला दिते। सवेरे दिन चढ़िया, दुखां दीयां रातां छेती मुकदियां नहीं। दिन चढ़िया, वजीर खान ने कचहरी लाई, बड़ा काला पै गया। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां नूं सजा देनी है, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तरां नूं सजा देनी है। जदों कचहरी सजी, घड़ियाल बज्जा, सिपाही कल्ले, जाओ गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादे लेके आओ। जदों सिपाही लैण आए ना, पौड़ियां चढ़ के दो सिपाहियां ने आवाज दे के कहा, माता जी तुहाडे पोतरियां नूं कचहरी विच बुलाया। ते मां गुजरी ने बड़े सहज नाल कहा, 83 साल दी उम्र है। धन माता गुजर कौर जी बोले, कहंदे वे काका कचहरी विच मैनू लेके जाओ, जे कोई सवाल जवाब पूछना है पुत मेरे तो पूछो, जे कोई सवाल करने कचहरी च मेरे तो करो। आ निक्के निक्के साहिबजादे ये मासूम जिंदा, इन्हां दे सवाल जवाब देण दी उम्र नहीं, कचहरी विच तरीकां भुगतण दी उम्र नहीं।
निक्के निक्के बच्चों तो की पूछना है, मैनू लेके जाओ। सिपाहियां क्या माता वजीर खान का हुक्म सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां नूं लियाण दा, तैनू नहीं। दोमां साहिबजादियां नूं पेश करन दा हुक्म है। अपने पोतियां नूं तैयार कर। मां गुजरी ने दमाले बन्ने सन बच्चियां दे, दोमां लालां नूं जपजी साहिब सुना दिता सी। तोरन लगे हाथ जोड़ के अरदास कीती, हे गुरु तेग बहादुर साहिब, तेरे पोतियां दी उम्र कचहरियां विच जाण दी नहीं। पौने 7 साल का बच्चा भी कोई कचहरी च जाता है। तेरे पोतियां दी उम्र तरीका भुगतण दी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब, लाज रखी अपने पोतियां दी, ईन ना मनन, ये धर्म विच पक्के रहन, जित के वापस मेरी गोदी विच आउण। अरदास करके मां गुजरी ने तोर दिते। कचहरी विच गए, पहले ही मां गुजरी ने सिखाया सी, पुत गज के फतेह बुलानी है। कचहरी बढ़दियां साहिबजादियां कहा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वजीर खां बड़ा हैरान होया ते हैरान होके कहंदा, ओ बच्चो, ये तुहाडे प्यो दा आनंदपुर साहिब नहीं, ये सूबा सरहंद दी कचहरी है। तेनी गल कह के फिर सूबा सरहंद उच्ची उच्ची हस पिया। नाल बैठे सिपाही भी हस पे, नाल बैठे एहलकार मंत्री सुच्चा नंदौड़िया वर्गे दीवान हस पे। ते हसन तो बाद उन्हें मजाक करके पता की किया, ओ मैं ते एवें ही राती सोचदा रहा, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां नूं आ सजा दवांगे, आ सजा दवांगे। ये ते छोटे छोटे बच्चे ने, इन्हां नूं सजावां देण दी लोड़ नहीं। मैं तो एवें सोचता रहा, राती आ भी मैं सोचा आ भी सजा दवांगे, आ भी सजा दवांगे। ये सजावां दी जरूरत नहीं, ये ते निक्के निक्के बच्चे ने, जाओ इन्हां नूं लै जाओ, कुछ खाण दीयां चीजां दिओ, कुछ खेडण दीयां चीजां दिओ, आपे ही भुल जाणगे 1-2 दिनां विच मां प्यो नूं। ये ते 1-2 दिनां विच खाण खेडण दीयां चीजां नाल भुल जाणगे मां प्यो नूं। जाओ इन्हां खाण खेडण दीयां चीजां दिओ। सब सिपाही हस पे। मंत्रियां दे दीवान सुच्चा नंदौड़िए दे कहण ते सिपाही लै गए। तरह तरह दीयां खाण दीयां चीजां मोहरे कीतियां, किसे चीज वल मूंह ना कीता। भुख तां सी पर खादा पता क्यों नहीं। दादी मां भुखी बैठी है, असीं किवें खा लईए? दादी दी आग्या तो बगैर किवें खा लईए? दादी दा हुक्म है, पुत तुरकां दी कोई चीज मुंह ते नहीं रखनी। दोमां साहिबजादियां ने किसी चीज वाल मुंह ना कीता। बथेरे तरह तरह दे भोजन विखाए। अखीर वो सिपाही ते सुच्चा नंदौड़िया खिडौणियां वल लै गए। तरह तरह दे खिडौणे विखाउंदे ने, किसी खिडौणे वाल मन ही ना कीता साहिबजादियां। अचानक 2 खिडौणे नजर पे ते साहिबजादियां भज के चुक लै। सुच्चा नंदौड़िया खुश होया, चलो कुछ तां लिया इन्हां ने। वजीर खान नूं दस्सण दे योग तां होए वे, कोई गल है तां सही, ना कुछ चुकिया ते है। दोमां साहिबजादियां भज के 2 खिडौणे चुक लै। पता की इतिहासकार कहंदे ओ खिडौणे छोटियां छोटियां लक्कड़ दीयां तलवारां ते तीर कमान, जिहड़े तुसीं भी मेलिਆਂ 'ਚ अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के दिंदे। वो तीर ते तलवारां चुक ले ते खेडण लग पे। बाबा फतेह सिंह कहंदे ने वड्डे वीरे नूं, वड्डे वीरे जोरावर सिंह, मैं तीर चलावांगा, तू चुक के लिआया कर। वो तीर चलाउंदा है, वड्डा चुक चुक लिआउंदा है। 3-4 घड़ियां खेडदे रहे। इन्ने नूं दोपहर हो गई। दोपहर ढलदियां घड़ियाल वजी, आवाज आई, साहिबजादियां नूं कचहरी विच पेश कीता जाए। सूबा सरहंद फिर बह गया। साहिबजादियां हाथ तलवारां, तीर कमान तलवारां कमर कसियां में चुके तुर पे। बड़े हसदे खेडदे कचहरी विच आए ते सूबा सरहंद पुछदे, भई कुछ खादा इन्हां ने? दीवान सुच्चा नंद बोलिया, जी कोई चीज इन्हां मुंह ते नहीं धरी, किसे चीज वाल मुंह नहीं कीता। बड़े बाजिद ने, खादा ही कुछ नहीं। कोई खिडौणे लए ने ते सुच्चा नंद मखौल उड़ा के कहंदा, खिडौणे कादे जी? निक्कियां निक्कियां तीर ते तलवारां चुक ले ने। तीर कमान ते तलवारां नाल ही खेडी जांदे ने। सूबा सरहंद वजीर खान मखौल उड़ा के कहंदा, ओए बच्चो, ये लक्कड़ दीयां तलवारां नाल की करोगे?
ओए बच्चे ओए लकड़ दियां तलवारां ते तीरां नाल की करोगे? यानी सोहन सिंह सीतल साहब लिखते ने, कहंदे इन्नी गर्जमी आवाज विच बाबा जोरावर सिंह ने कहा, पौने 9 साल की उम्र है, बड़ी गर्जमी आवाज विच धौन उच्ची करके कहा, वजीर खान असी गुरु गोबिंद सिंह दे लाल हां, एक बार छड्ड के वेख, लकड़ दी तलवार नाल भी तेरा सिर वड़ दियांगे। इन्नी गल सुन के सूबा ठर गया, शरीर पानी हो गया, बड़े गुस्से च बोलिया, बड़े गुस्ताख बच्चे ने, इन्हां नूं मेरी नजर तो परे ले जाओ, एक रात भुखे प्यासे रखो बुर्ज विच, कल वेखांगा इन्हां दी आकड़। कचहरी चों बाहर ले जाओ। उसे वक्त सुच्चा नंद ने इशारा किया, साहिबजादियां नूं कचहरी चों बाहर ले जाओ। जिवें सिपाही लैके जाण लगे, कहंदे ने वजीर खां इन्ना डर गया, ओदे अंदरों आवाज आ रही सी, ओ तिखी आवाज गुजी, लकड़ दियां तलवारां नाल भी तेरा सिर वड़ दियां। डरे हुए वजीर खान ने साहिबजादियां नूं कचहरी चों बाहर जांदियां वेख, पिछों सिपाहियां नूं आवाज मार के कहा, ओए रुक जाओ, इन्हां कोलों तलवारां ते तीर ले लो। इन्ना डर गया कि शायद लकड़ दी तलवार नाल भी वड्ड देण, इन्हां तो तलवारां ते तीर वापस ले लो। साहिबजादियां नूं खाली मां गुजरी जी दे कोल भेज दिता। जदों माता जी दे कोल गए ना, ते मां गुजरी पुछदी है, वे लाल अज की होया कचहरी विच, सारा दिन लगा दिता? पुत इन्ने सवाल जवाब, सारियां गल्लां बाबा जोरावर सिंह ने दसियां। नहीं दादी मां, अज उन्होंने सानू आ कुछ कहा, फिर सानू खाण दीयां चीजां दित्तियां, असीं कुछ खाधा नहीं, फिर सानू खिडौणे दिते, तीरां ते तलवारां नाल खेडदे रहे। दादी मां, जदों वजीर खान ने मखौल उड़ा के कहा ना, की करोगे लकड़ दी तलवार नाल, ते दादी मां मैं कह दिता, तेरा लकड़ दी तलवार नाल भी सिर वड़ दियां। मां गुजरी ने घुट के गल नाल ला लिया, शाबाश पुत्रो, ऐदां ही अणख विच रहो, सिर ना झुकायो ओदे अगे, पुत वध तो वध की कर लेगा, तुहानू मार ही देगा ना। पुत अणख विच सिर उच्चा रखियो, सिर ना झुकायो। दोवां पोतियां नू शाबाश दित्ती, गल्लां करदे रहे। सूरज डुबिया, हनेरा पिया। मां गुजरी ने सोदा रहरास दा पाठ सुनाया। आओ पुत तुहानू गुरु दी बाणी सुणावां। गोदी दे कोल बिठा के पढ़िया, आसा महला पंजवा, भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पाज। अज केड़ी केड़ी दादी है जिहड़ी पोतियां नू कोल बिठा के बाणी सुणाउंदी होवे? है कोई भागां वाली इदां दी दादी जिहड़ी कोल बिठा के कोई गुरु दी गाथा सुणाउंदी होवे? तुहाडे घरां 'च हर रोज पाठ चलदे ने टेलीविजन ते। दरबार साहिब तो बच्चियां नू कोल बिठाया करो, रहरास दा पाठ कराया करो, ये बाणी साडे कम आएगी। तुहानू हथ जोड़ के बेनती है, कोई विरला घर है जिथे लोग रहरास दा पाठ बच्चियां नू सुणाउंदे ने, कोई गुरु दी गाथा कोल बिठा के सुणाउंदे ने। हाँ हो दूजा तीजा बड़ा कुछ वेखदे हो, वो फिर सारा ही टब्बर बह जांदा है। जे कोई बच्चा माड़ा जिहा रौला पावे ना, मावां तैड़ देनी, थप्पड़ मारदियां ने, चुप करके बह जा, उधर गोपी मरन लगी सी। तुहाडा ध्यान इन्ना टेलीविजन च है। अज साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े मना रहे हो, अंदर एक प्रण करियो, जिन्नी देर सोदा रहरास दा पाठ चल रहा होवे, अपने बच्चों नू चुप करा के नेड़े बिठाया करो, असर होएगा, ओदा असर होएगा। थोड़ा थोड़ा भी सुना दिओ ना, तां भी घाटा नहीं पैंदा। बाणी इन्नी वड्डी ताकत रखदी है, बूटे नू थोड़ा थोड़ा भी पानी पाई जाओ, बूटा हरा रहिंदा है। वक्त पा के वो बूटा छां भी दिंदा ते फल भी दिंदा। जे तुसी बाणी तो दूर रखना भाई, फिर गुरु दा कोई कसूर नहीं, जिथे मर्जी भटकी जाओ, बाणी तो बगैर सिक्खी दे बूटे सुक जाते हैं। खैर, मां गुजरी ने सोदर दा पाठ सुनाया, फिर साहिबजादियां नू गुरु दी गाथा सुनाउण लग पे। पुत तुहाडा दादा इदां शहीद होया है। अद्धी रात हो चली, कथा मुक गई है। मां गुजरी साहिबजादियां वल वेखदी है, कल तां सौ गए सी, अज नहीं सौंदे। पता क्यों? पेट दी भुख सौण नहीं दिंदी। तुसीं भी पुत्तां वाले बैठे हो,
कोई बच्चा 3 दिन 3 रातां भुखा रह जाए, वो भी पौने 7 साल पौने 9 साल की उम्र है, मां दियां अंदरां तो पुछया जानी है की बीतदी। मां गुजरी वेखदे है, पोते सौंदे नहीं, वे पुत सौ जाओ। जबान तो कहंदे नहीं, दादी मां भुख लगी है। इन्नी समझ, इन्नी उच्ची सोच मां गुजरी नूं सब पता है, पुत भुख तुहानूं सौण नहीं दिंदी। मैं पहले दिन ही कहा सी, पुत्रा आनंदपुर साहिब नहीं है, जालमां दा सरहिंद है, इत्थे पता नहीं साडे नाल की कुछ होना। दोवें साहिबजादे पेट तो भुखे सन। दादी ने दिल ते पत्थर रख के एक काम कीता, दोवां दे कमर कसे कस के बंद दिते, शायद पेट दा भुख दा दर्द घट जाए। रात पई, अद्धी रात तो थोड़ा जिहा वक्त उपर होया, थोड़ी जी शायद गुरु गुरु करदे अख लगी होनी। इन्ने नूं सरहंद दे उस ठंडे बुरज दियां कोई पौड़ियां चढ़ रहा सी। मैले जे कंबल दी बुक्कल मारी है, पैरां दी विड़क मां गुजरी नूं सुनी है। एकदम धन माता गुजर कौर उपर सिर चुक के वेखण लग पे। बिरध शरीर है, बड़ी गौर नाल वेखदी, कोई बंदा पौड़ियां चढ़ के आ रहा है। जदों थोड़ा नेड़े होया, आवाज दे के कहा, वे काका तू कौन है? मेरे पोतियां नूं लैण आया है? वजीर खान दे सिपाही लगदा है, मेरे पोतियां नूं लैण आया है? ते उस बंदे दी अखां सेजण, बड़े बराग नाल रोक के बोलिया, नहीं मां, मैनू लोग मोती राम मेहरा कहंदे ने, मैं घर दा कीमती समान बेचिया, रात दे सिपाहियां नूं मसां खरीदिया। मैं कल दा सोचदा सी गुरु गोबिंद सिंह दे लाला नूं दुध छकाउणा, तेरे पोते भुखे ने। मां गुजरी, मैं मोती राम मेहरा हाँ, दुध लेके आया, तेरे पोतियां नूं दुध पिलाउणा। मां गुजरी अगों कहा, काका सोच लै, ये 2 गिलास दुध दे तैनूं महंगे पै सकदे ने। ये साहिबजादियां नूं दुध पिलाउणा महंगा पै सकदा है। असीं हकूमत दे बागी आ, गुरु गोबिंद दे लाला नूं दुध पिलाउणा महंगा हो सकदा है। रो के मोती राम मेहरे ने कहा, मां जिन्ना मर्जी महंगा पै जाए, एक बार साहिबजादियां दी सेवा कर लैण दिओ। दोवां साहिबजादे उठ के बह गए। 2 गिलास दुध दे भरे ने। जदों मां गुजरी ने कहा, लै मेरे लाल दुध छको, वे मोती रामा तू बड़ा ही पुन खट्टिया। साहिबजादियां नूं दुध छकाउण लगी ते दोवां साहिबजादियां दुध पीण तो पहला आपो अपना गिलास अपने दादी दे मुंह नूं लाया। एक एक घुट पहला दादी ने भरिया, फिर दोवां पोतियां नूं दुध छकाया। ते जदों दोवां साहिबजादियां दुध पीता ना, मां गुजरी ने एक गल कही, वे मोती रामा तू बड़ा ही पुन कमाया है। हुण मैनू कोई चिंता नहीं, हुण मैनू कोई गिला शिकवा नहीं। हुण मेरे पोते कल शहीद भी हो जाण, मैं ये तां कहांगी, मेरे पोते भुखे नहीं मरे, रज के मरे ने। मेरे पोते भुखे नहीं मरे, वे तू दुध पिला के बड़ा ही पुन खट्टिया। वे मोती रामा, दुनिया च मोती बहुत होणगे, वक्त पै के मोतियां दी चमक घट जांदी है। चमक घट जाए ते कीमत भी घट जांदी है। मोती रामा, जेड़ी सेवा तू कर चले, रहिंदी दुनिया तक तेरी चमक दी सिफत धरती ते रहेगी। दुनिया गुरु गोबिंद सिंह दे लाला नूं चेते करेगी, तैनूं भी याद करेगी। साध संगत बाबा मोती राम मेहरे नूं याद रखियो। 2 गिलास दुध दे वाकई बड़े महंगे पे ने। अज आपां लंगर ला दिन्ने, सारा सारा दिन दुध बदामां दा पा के विच बड़ा कुछ करनी चाहिदी सेवा, पर असीं बाबे मोती राम मेहरे दे 2 गिलास दुध दे बराबर नहीं कर सकते। पता क्यों? अपने बच्चे समेत जदों हुकूमत नूं पता लगा ने साहिबजादियां नूं दुध पिलाया, ओदा पूरा परिवार जालमां ने कोल्लू च पीड़िया। पूरा परिवार कोल्लू च पीड़ के शहीद किया। बाबे मोती राम मेहरे नूं 2 गिलास दुध दे वाकई बड़े महंगे पे ने, पर एक गल सच है,
ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤ ਹੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, 1-2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੋਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆਉਣ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੌਹੀਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਲਦੀ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰੇ ਫਿਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ 2 ਨੇਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਮੋਰੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੜੇ। ਤੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਤਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਣਖ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਦਾਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਨਾਰਾ, 10ਵੀਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਲਾ ਡਿੱਗ ਪਈ, 10ਵੀਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਅ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
सब ने इक्को ताड़ विच उस कचहरी विच इक्को बंदे ने उठ के विरोध किया। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां तो बदला, ओदे गुरु गोबिंद सिंह दा बदला ओदे बच्चियां तो नहीं लेना चाहिदा। पर एक कचहरी विच जो बंदे ने एक गल कही, वो कहंदा मेरे भी दुश्मन ने गुरु गोबिंद सिंह। मरेलकोटले दा नवाब शेर मुहम्मद खां कहंदा मेरे दुश्मन ने गुरु गोबिंद सिंह, उन्हें मेरे भरा नूं मारिया, मैदाने जंग विच मिलणगे मर जांगा जां मार दांगा, पर गुरु गोबिंद सिंह दा बदला ओदे पुत्तां तो नहीं लवांगा, ओदे मासूम बच्चियां तो बदला लेना पाप है। वजीर खान ये तैनूं करना नहीं चाहिदा। पर जदों सारी कचहरी ने एक तरफा फैसला किया, वो बंदा उठ के वॉकआउट कर गया। फैसला ये किया कल सवेरे बंदोबस्त कर दिओ। काजी ने यासा दे दीन हुक्म सुनाया जी इन्हां नूं कंधां विच चढ़ दिता जावे। फिर साहिबजादियां नूं वापस मां गुजरी कोल भेज दिता। कल सवेरे वो तैयारी करनी सी, रात लंघ गई। सवेरे सवखते ठंडे बुरज दे सामने इट्टां सुट्टणियां शुरू कर दित्तियां। रखे हुए राज मिस्त्रियां ने गारा रलाउणा शुरू कर दिता। मां गुजरी दे सामने जान बुझ के इट्टां सुटदे ने। अज भी वेखियो ठंडे बुरज दे बिल्कुल चढ़दे वल वो शहीदी कंधा ने, शहीदी अस्थान है। बिल्कुल मां गुजरी दी अखां दे सामने ये साका वरतिया। क्यों? शायद दादी दा दिल पिघल जाए, कदे धा मार के कह दे वे ना मारो मेरे पोतिया। उन्हां दे मन विच सी गल। अगली सवेर दिन चढ़िया, सिपाही लैन आ गए, इट्टां सुट दित्तियां गईयां। दोवां साहिबजादियां नूं जदों बुलावा कल्लिया, मां गुजरी ने दवा दव तैयार कीते, शाबाश दित्ती, मस्तक चुम्मे, जाओ मेरे लाल छेती जाओ, तुहानूं देरी हो रही है, वे पुत छेती जाओ। दोवें साहिबजादे सिपाहियां नाल तुर पए ते कहंदे ने पौड़ियां उतरन लगे रुक गए। पिछां परत के दादी वल वेखण लग पए। सिपाही सोचते ने अज इन्हां दा आखिरी दिन है, शायद तां दादी वल वेख के कमजोर हो रहे ने। दोवें साहिबजादे रुक गए। मां गुजरी ने कहा वे लाल रुक क्यों गए? ते छोटा बाबा फतेह सिंह भज के कोल आया, कहंदे दादी मां एक गल दसनी तां मैं भुल ही गया सी। बिलाल दस। दादी मां कल जदों असीं कचहरी विच गए सी ना, मैं डर गया सी। वे पुत तू क्यों डर गया सी? वजीर खान ने डराया? नहीं नहीं दादी मां, ओदे जलादां तो डरिया। नहीं दादी मां, कल मैं वजीर खान तो ओदे जलादां तो नहीं सी डरिया। कल पता की होया सी? जदों कचहरी विच गए दादी मां उन्हीं दरवाजा छोटा कर दिता। मेरे तो अगे अगे वड्डा वीरा जोरावर सिंह सी ते दादी मां उदों मैं डर गया। जे अज वड्डे वीरे ने कचहरी विच पैर धरन लग्या सिर झुका दिता, अज मेरी दादी दा सिर ना झुक जाए, अज मेरे पिता दा सिर ना झुक जाए। वे लाल फिर सिर ते नहीं सी ना झुकाया? कहंदे नहीं नहीं दादी मां, असीं बिना सिर झुकाया जदों जाके कल फतेह बुलाई, काजी दे हथों तां माला ही डिग पई सी। मां गुजरी ने कहा शाबाश पे पुत, अज भी इदां ही करियो। जल्दे कचहरी विच फतेह बुलायो, सिर ना झुकायो, जाओ छेती तुहानूं देरी हो रही है। जदों तुरन लगे ते बाबा जोरावर सिंह कहंदे दादी मां तू कुछ भुल गई है। पुत मैं की भुल गई है? मैं सवेरे तुहाडे केसां च कंघा भी कीता, दमाले भी सजाए ने, जपजी साहब भी सुनाया, मैं की भुल गई है? दादी मां तू कुछ भुल गई है, दस वे पुत मैं की भुली है? ते बाबा जोरावर सिंह कहंदे दादी मां तू अरदास करनी भुल गई है। 2 दिन अरदास करके भेजदी रही, मेरे पोतियां दी उम्र कचहरियां च जाण दी नहीं, जित के वापस आउण गुरु तेग बहादुर साहब, जित के वापस आउण। अज तू अरदास ही नहीं कीती। मां गुजरी ने बड़े सहज ते प्यार नाल मस्तक चुम के कहा वे मेरे पोतियो मैं भुली नहीं, पुत अज जान के अरदास नहीं कीती, मैं जान बुझ के अरदास नहीं कीती। दादी मां क्यों?
कहते 2 दिन मैं अरदासां करदी रही, मेरे पोते ईन ना मनन, ईमान च पक्के रहन, धर्म विच जित होवे, मेरे पोते जित के वापस मेरे कोल आउण, जित के वापस आउण। पुत अज मैं जान बुझ के अरदास नहीं कीती, मैनू पता है अज तुसीं वापस दादी दी गोद विच नहीं, अज दादे दी गोद च जाना है। अज तुसीं वापस दादी कोल नहीं, अज तुसीं दादे कोल चले जाना। दोवां साहिबजादियां नूं तोड़ दिता, कचहरी जांदियां फतेह गजाई। वजीर खां पहले क्रोध विच बैठा सी, उहने काजी नूं कहा जी करो बंदोबस्त। ते काजी ने कुरान शरीफ दी झूठी जे इस तरह इम्तिहान खोल के एवें बोलिया, यासा दे अधीन शरा दे मुताबिक हुकूमत दा विरोध करन दे दोष विच इन्हां दोवां साहिबजादियां नूं जिउंदियां कंधां विच चिण दिता जावे। हुक्म सुना के कचहरी तो बाहर ग्राउंड विच ले आया। वजीर खां उच्ची फसील ते चढ़ के बह गया, सामने राजमिस्त्री भेज दिते गए। सवेर तो कंधां चिणन लगे, दोपहर हो गई। मां गुजरी वेखदी रही, अखां दे सामने पोते कंधां विच लुकदे गए। दोवां साहिबजादियां दा मूंह ठंडे बुरज वल मां गुजरी वल कीता होया। इतिहास कहंदा है अखीर मां गुजरी रीझ ला के पोतियां वल तकदी रही। जदों कंधां गलां तक आ गईयां ना, हुण कुछ घड़ियां कुछ मिंटां दी खेड रह गई। जिन्ने लोग तमाशबीन सदे सन सरहंद दे इस वास्ते कि वध तो वध आले दुआले खबर फैले, कोई बंदा हुकूमत दा विरोध ना करे। डर लगे अगे तो हुकूमत के विरोध विच नहीं खलोना किसी ने। हुकूमत इन्नी जालम है, लोकां मूंह विच उंगलां पा लईयां, मूंह सुक गए, खाडियां रह गईयां। वे इन्ना बड़ा जुल्म, इन्ने छोटे छोटे बच्चे कंधां चिणदे। चरण सिंह सफरी साहब दी पंक्तियां कह के मैं समाप्ति करनी है, समा बहुत हो गया है। कहंदे ने ओ साहिबजादियां नूं कंधां 'च चिणदे रहे। गारा ते इट्टां फड़ाउण वाला एक जलाद कल्लिया, जा मां गुजरी नूं पुछ ओदा इरादा ते नहीं बदलिया, किते कह दवे शायद मेरे पोतियां नूं छड्ड दिओ, गलां तक कंधां आ गईयां, एवें गल कुट्टे जाणगे, मुक जाणगे, छड्ड दिओ, जा पुछ की कहंदी है मां गुजरी। जलाद जांदा है ते मां गुजरी नूं पुछदा है। चरण सिंह सफरी साहब लिखते ने, कहंदे कि भज्जा भज्जा गया जलाद ते कहण लगा, मां गुजरी नूं कहंदा एक भज्जा भज्जा गया जलाद ते जाके मां गुजरी नूं कहण लगा, कहंदा जोड़ा एक मासूमा दा रह गया सी, तेरे कोल 2 मासूम पोतियां दा एक जोड़ा सी, तू किदां दी दादी है, वो भी गवाउण लगी है। जोड़ा एक मासूमा दा रह गया सी, हुण जापदा ओ भी नहीं रहन लगा, वड्डे पुत्रे दादे दे मगर तुर गए, छोटे आसरा सन ओ भी ढहन लगा। तेरे वड्डे पोते चमकौर दी जंग विच सुनिया मारे गए ने, शहीद हो गए ने। आ 2 बचे सी, तां बचा लैंदी, इन्हां नूं क्यों कंधां 'च मरवाउण लग गई है? तू किदां दी दाती है? जलाद जो कह रहा है, कहंदा वड्डे पुत्रे दादे दे मगर तुर गए, छोटे आसरा सानों भी ढहन लगा, बेटा लापता है अगों देख किस्मत तेरी किदां दी किस्मत है। तेरे पुत दी कोई खबर नहीं। सुनिया चमकौर दी जंग चों निकल गया पर खबर नहीं कोई है भी जां नहीं। ओ जलाद कहंदा बैठ नेरे दे विच तू अम्मीए नी, तेरे चंद नूं लगण ग्रहण लगा, 2 रदे लाउणे ने पोते मर जाने ने, तेरा चंद गया ग्रहण लग गया, तेरे चंद नूं लगण ग्रहण लगा, बेटा लापता है अगों देख किस्मत, तेरे बेटे दे बेटे आ जा रहे ने,
रेशम बिच लपेट के रखदी से, इट्टां विच लपेटे ओ जा रहे ने। जिन्हां दी उम्र रेशम दियां रजाइयां च रखण दी है, वो कंधां च लपेटे जा रहे, इट्टां थल्ले आ रहे। अगों मां गुजरी ने फिर बड़े सहज नाल दृढ़ता नाल जवाब दिता, कहंदी वे जलाद नूं, कहंदी वे पुत्त तू इत्थों तक आया जी सदके, मेरे अखां च नमी लियाउण खातर नवी खबर ले आया है जी सदके। वे पुत्त तू खबर देण आया ना, वे तेरे पोते मर चले ने जी सदके, तू खबर लेके आया। पर हुण मां गुजरी रो नाल बोली, जा वे अपना काम कर। इट्टां फड़ा, इट्टां मुक चलियां ने, इट्टां पकड़ा जाके मिस्त्री नूं, इट्टां मुक चलियां ने, जा अपना काम कर, अपने मालकां दा हुक्म मन। मां गुजरी अगों जवाब दिता बड़े प्यार ते बड़े रोह विच। उस जलाद नूं कहंदी, वे जा अपने मालकां दा हुक्म मन, वे जा तू हुक्म मन, तैनू कौन रोके। बिगड़िया कातों तू गिणी जाने, कंध मिणी जाने वार वार, जेड़ी कफन मुगल हुकूमत दा मिणी जाने। ये कंधा नहीं, मुगलिया हुकूमत दा कफन है, डिगण गिया देखी मुगलिया हुकूमत ते कफन पै जाना। वो जलाद फिर चला गया ते गुस्से विच गया, कहंदा किन्नी बजिद किन्नी जिद वाली दादी है, इहनूं पोतियां दा कोई तरस नहीं। ते जांदियां कहंदा ओनूं पोतियां दा कोई तरस नहीं, लियाओ इट्टां पकड़ाओ। दवा दव साहिबजादियां नूं कंधां चिण दईए, दवा दव दोवां हत्थां नाल इट्टां फड़ाउण लगा। रदा चुकदियां चुकदियां बाबा फतेह सिंह दे मूंह वल आ गया, गल घुट होण लग पए, साह हुट होण लग पिया। ते वो विद्वान लिखदा है, कहंदा परत गया जलाद फिर दुखी हो के, ओ खूनी कंध ते इट्टां लाउण लगा। अंबर बिच कहारी दे शेक पै गए, सीना पृथ्वी दा थर थराउण लगा। बाबा फतेह सिंह दा मुंह दिसना बंद हो गया। मां गुजरी नूं ऐ लगा मेरा एक चंद तां छुप गया कंधां विच, दूजे वल वेखदी है। धन मां गुजरी ते धन गुरु दे लाल। कहंदे फतेह सिंह मासूम दे मूंह ते जदों रदा खीर लाया आउण लगा, पज गारे दे फेर जलाद भज्जा ते जाके गुजरी ताई सुणाउण लगा। अखीर बार जाके मां गुजरी नूं कहंदा माता गुजरीए किहो जई गुजरदी है, तेरे उत्ते कहारियां गुजर गईयां, गया गुजरिया शहर भी आखदा ए, गुजरी उत्ते कहारियां गुजर गईयां। मां गुजरी अगों जवाब दिता, मेरा नाम गुजरी, मेरी अल गुजरी, एहो जही कहानी तां मेरे उत्ते वे घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। पहला पति दिता फिर मैं पोते तोरे, ओ हुण मौत मैनू कहंदी है चल गुजरी। लोग गुजरी मैनू ताइयों आखदे ने, जिहड़ी आई सिर ते ओ मैं चल गुजरी। दोवें साहिबजादे कंधां विच लुक गए, शरीर साह हुट्टे गए। मिस्त्रियां ने कांडी टेसी आरे सब कुछ सुट दिता। हथ धो के वजीर खान नूं कहंदे ने कंधां चिण दित्तियां गईयां जी। हुण ओह कांडी टेसी सुट के मिस्त्री चले गए। सब लोकां दी नजर कंधां वल, उस कंध वल रही। डेढ़ घड़ी गुजरी, अचानक दोवें कंधां डिग पईयां। गुरु दे लाल साहिबजादे भी डिग पे, इट्टां थल्ले शरीर आ गए। उच्ची फसील ते बैठा वजीर खां वेखदा, सब दे मुंह सुक चुके सन। उच्ची फसील तो फिर बोलिया शाशल वेग ते बाशल वेग नूं, ओए बाशल वेग वेख खां कोल होके गोबिंद दे लाल मर गए ने, इट्टां थल्ले आए ने, वेख खां गोबिंद दे लाल मर गए ने।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਬਜਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਬਜ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बेहोश हो गए ने, साह कुटिया गया, बेहोशी में चले गए। वजीर खान ने क्या, अलख मुका दो, खंजर कट दे, साह वालियां रगां वड़ दे। दोमा जलादा ने दोमा साहबजादियां दी छाती ते गोडे रखे, खंजर तिखा कट के गलां ते साह वालियां रगां वड़ दित्तियां। साह वाली रग वड्डण दी देर दुना सिंह हडूरिया लिखदा, कहंदा जोरावर सिंह खंडे के साथ प्राण बेग छुट गए। एकदम साह वाली रग वड्डी, बाबा जोरावर सिंह जी दे प्राण तो उसे वक्त पूरे हो गए। पर फतेह सिंह आद घड़ी पांव मारते रहे। घट्टो घट 12 मिनट बाबा फतेह सिंह दा शरीर तड़फदा रहा, पैर बजदे रहे, सब वेखदे रहे। ताहां निकल गईयां दुनिया दियां, अंबर विच कहारी दे शेक पै गए। सीना पृथ्वी दा थर थराउण लगा। मां गुजरी अखां नाल वेखदियां सब कुछ असह कष्ट सहारदियां शहादत दा जाम पी गए। 1.5 दिन लाशां पईयां रहियां। बाद विच दीवान टोडरमल ने जगह मुल खरीद के, क्योंकि सरहंद विच जगह नहीं मिली, अत्तेवाल पिंड दी जगह है, सरहंद तो बाहर जाके अत्ते चौधरी कोलों मुल जगह खरीदी, जिथे अज गुरुद्वारा ज्योति सरूप साहिब है। उत्थे 3 लाशां दा संस्कार होया। अज वो पूरे वर्ल्ड विचों सब तो कीमती जगह है।